Hey everyone, in this video we are going to discuss today's lead code contest, that is weekly contest 511. So let's start with the first problem. Our first problem is even number of knight moves. In this problem you are given two integer arrays, start and target. Each array represents the position. So you need to return true if a knight can move from start to target in even number of moves. Otherwise you will return false. Right? And a valid knight move consists of moving two squares in one direction and one square in perpendicular to it. The figure below illustrates all the possible 8 possible moves from a cell. Okay, so the problem statement is pretty simple. You are given start and target position of a chessboard, right? And you need to move a knight from start position to a target position in even number of moves. If it is possible, just return true, otherwise return false. So let's see how we can solve this problem. So let's try to understand its moves of a knight, right? So initially you know that a knight can move two positions in one direction and then one position in other perpendicular direction, right? Either left or right. So from this particular cell there are these 8 possible moves, right? So if you try to observe it, you can see that, let's say currently knight is present at a black position, right? A black cell. Then in one move knight can only move to white cell. You can see that all of these moves are to the white cell. ओके, सो आप अब इसमें नेक्स्ट थिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये तो फर्स्ट मूव था आपका, फर्स्ट मूव वाज फ्रॉम ब्लैक सेल टू वाइट सेल, और जो सेकंड मूव होगा ना वो डेफिनेटली वाइट सेल से ब्लैक सेल पर होगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेम कलर ऑफ सेल्स पर एक मूव में नहीं जा सकते. आप कोई भी मूव ले रहे हो ना तो उसमें आपका कलर चेंज होगा, पक्का चेंज होगा, है ना? आप कोई भी, जैसे इधर देख ही रहे हो, हर एक पॉसिबल मूव है वो आपको आपका जो सेल करंट पोजीशन का जो सेल का कलर है वो चेंज कर रहा है, राइट? फ्रॉम ब्लैक टू वाइट. नेक्स्ट मूव होगा आपका वाइट टू ब्लैक. तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो ना कि अगर आपकी स्टार्ट पोजीशन और जो टारगेट पोजीशन है, अगर लेट्स से इनका कलर सेम हुआ, राइट? अगर इनका कलर सेम हुआ देन यू नो दैट अगर कलर सेम हुआ तो इवन नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, राइट? सो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू फॉर दिस केस, राइट? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू. अदरवाइज लेट्स से कलर ऑफ स्टार्ट पोजिशन इज नॉट इक्वल्स टू टारगेट, राइट? ये कलर है, लेट्स से सी ऑफ दिस कलर है. लेट्स से कलर ऑफ स्टार्ट एंड टारगेट position is not equal, then you know that in that case knight will have to take odd number of moves, और odd number of moves तो हमें नहीं चाहिए, हमें even number of moves चाहिए. तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा false, right? So let's implement this. We just need to return if we just want that our start and target should have same color, right? और कलर हम कोई भी पोजीशन का पैरिटी से फाइंड कर लेंगे. अगर दोनों पोजीशन की पैरिटी सेम हुई, राइट? अगर पैरिटी सेम है तो इनका कलर भी सेम होगा. For first our answer is true, for second one false. Okay, let's submit it. Great.
So let's move to the second problem of our contest. Count dominant nodes in a binary tree. So you are given the root of a composite binary tree. A node x is called dominant if its value is equal to the maximum among all nodes in the subtree rooted at x. You need to return the number of dominant nodes in the tree. Okay, so the problem statement is pretty simple. आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है, राइट, और आपको डोमिनेंट नोड्स फाइंड करने हैं. एक डोमिनेंट नोड की डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने? एक डोमिनेंट नोड वही होगा अगर उसकी वैल्यू इज मैक्सिमम अमंग ऑल ऑफ द वैल्यूज इन इट्स सब ट्री. ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सिंपल. सो अब सॉल्यूशन भी सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. हमें बस ट्री को ट्रेवर्स करना है और इसके सब ट्री में देखना है सारी वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, राइट. इसके सब ट्री में सारे नोड्स से मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से mx है, और अगर इस नोड की कोई भी पर्टिकुलर नोड की वैल्यू अगर इस mx से ग्रेटर हुई तो हम अपने आंसर वेरिएबल को 1 से इंक्रीज कर देंगे, अदरवाइज वी विल जस्ट मूव टू इट्स पेरेंट, राइट. सो लेट्स ट्राई टू इधर इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन लेट्स थोड़ा स्मार्टली करना चाहेंगे, राइट. आपको पता होगा ट्रेवर्स से तो कर ही देंगे, एक अलग से फंक्शन बना लो इधर, राइट, और उस फंक्शन में एक आप आंसर वेरिएबल इधर डिक्लेयर कर लो आंसर, और इसको ट्रेवर्स करते जाओ, और आप सब ट्री में से जैसे डी एफ एस कर रहे हो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आप रिटर्न कर दो इसके सब ट्री की, और उस मैक्सिमम वैल्यू को आप चेक कर लो इस करंट नोड से, तो उससे आप और आंसर को अपडेट करते रहो, तो उससे हो जाएगा. बट थोड़ी प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग बनेगी. आप इसी फंक्शन में कर सकते हो क्या? आपको अलग से फंक्शन बनाना ही नहीं. कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सोल्व? यस, कर सकते हैं. कैसे? इसको थोड़ा लेट्स से अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं. तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो फंक्शन होगा इसी को रिकर्सिव बना देते हैं इधर. तो ये जो फंक्शन है एक्चुअली ये क्या रिटर्न कर रहा है? हमें रूट दे रखा है, ये रिटर्न कर रहा है काउंट ऑफ डोमिनेंट नोड्स इन द सब ट्री ऑफ रूट, राइट. ओके, सो लेट्स से पहले हम चेक कर लेते हैं अगर ये रूट नल हुआ, मीन्स अगर ये नल हुआ मतलब कोई ट्री है ही नहीं एक्चुअली, तो इस केस में हमारे डोमिनेंट नोड्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. अदरवाइज लेट्स चेक, एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा काउंट ऑफ डोमिनेंट नोड्स इन द सब ट्री ऑफ रूट. तो पहले हम इस रिकर्सिव फंक्शन से ही इसके लेफ्ट सब ट्री में फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज दिस? काउंट डोमिनेंट नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री, राइट. ऑल्सो काउंट डोमिनेंट नोड्स इन द राइट सब ट्री. ओके, इस रिकर्सिव फंक्शन ने आपको लेफ्ट और राइट दोनों के दे दिए क्या? काउंट ऑफ डोमिनेंट नोड्स, और वो आपने आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लिए. अब आप क्या चेक करोगे कि लेट्स से इफ रूट का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है एंड इसमें दे रखा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो रूट का अगर लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली राइट साइड भी एग्जिस्ट करता होगा, राइट. सो वी डू नॉट नीड टू चेक दैट. सो अगर लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है मतलब राइट साइड भी एग्जिस्ट करता है, मतलब राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता ही है. तो इधर हम चेक कर लेंगे कि इफ़ रूट की वैल्यू ऑफ रूट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ रूट के लेफ्ट की वैल्यू कोमा रूट के राइट चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, मैक्सिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला केस लेना इधर. इफ रूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ दिस चाइल्ड्स, तो आंसर को 1 से इंक्रीज कर दो.
अदरवाइज हम क्या करेंगे ना, इसके लेट्स से अगर रूट की वैल्यू अगर लेस है तो अब हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रॉम बोथ ऑफ दीज चाइल्ड्स, हम इसको अपडेट कर देंगे रूट की वैल्यू को। क्योंकि हम फ्यूचर में जब ये, क्योंकि हम डीएफएस कर रहे हैं, राइट, डीएफएस कर रहे हैं तो रिकर्सिव फंक्शन है, तो रूट कोई भी पार्टिकुलर नोड के लिए हम बस इसके दो चाइल्ड को देख रहे हैं, और दो चाइल्ड को हम इस तरीके से अपडेट कर देंगे सच दैट उनकी वैल्यू जो होगी ना वो मैक्सिमम अमंग ऑल ऑफ इट्स सब ट्री होगी, राइट। सो अभी बताओ मुझे कि इस रूट के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है अमंग ऑल ऑफ इट्स सब ट्री। ऑफ कोर्स ये बात है, इसकी खुद की वैल्यू तो बड़ी है नहीं, तो इस केस में क्या ही होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस बोथ ऑफ दिस चिल्ड्रंस। इसको आप अपडेट कर दो इधर, इसको आपने अपडेट कर दिया और आप क्या करोगे, रिटर्न करा दो, आंसर को रिटर्न करा दो। एक चीज़ इधर और बच गई कि अगर रूट का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये लीफ नोड है, इस केस में भी आपका आंसर एक से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लीफ नोड भी इटसेल्फ में डोमिनेंट है, राइट। सो इसको लेट्स ट्राई टू रन इट। For first one our answer is 5, for second one our answer is 4। ओके, सो हमने इसको बिना किसी एक्स्ट्रा फंक्शन बनाए हुए सोल्व कर दिया, सिर्फ इसी फंक्शन में, इसी फंक्शन को रिकर्सिव बना दिया। ओके, सो लेट्स सबमिट इट। रन टाइम एरर है इसमें, null pointer root, if root is null then we are just returning, तो इस केस में रूट तो नल नहीं है, राइट, रूट नल नहीं है तो हम लेफ़्ट चेक कर रहे हैं, अगर लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो ऑफ कोर्स राइट भी एग्जिस्ट करेगा। इसमें ये इशू क्यों आ रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा क्या हमें। नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री दे रखा है तो सिर्फ इसी से चल जाएगा। लेट्स डू दिस। सेवन वन, अच्छा, आउटपुट टू एक्सपेक्टेड वन, अच्छा 4 to 10 4 से लेकर 10 तक एक एज है। इसमें तो मतलब 1 ही आना चाहिए था, ये 2 कैसे है। हमने लेफ़्ट चाइल्ड चेक किया, राइट चाइल्ड चेक किया, अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी हमने ये वाली वैल्यू चेक करी, राइट, और एल्स रूट को अपडेट कर दिया। अच्छा, इधर मान लिया हमने कि ये कि पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है। खुल जाओ भाई, लिंक काम नहीं कर रही है।
where every level is completely filled with nodes except possibly the last level, which must be filled from left to right without any gaps. ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री ये होता है, वो परफेक्ट बाइनरी ट्री होता है फिर, जिसमें हर एक लेवल कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इस केस में ये कह रहा है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो इसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड ओनली एग्जिस्ट भी कर सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि ओनली एक चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इधर ही फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या होगी, अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में आपकी लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अदरवाइज अगर एग्जिस्ट ही नहीं करा तो ज़ीरो ले लो वैल्यू। ऐसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ राइट चाइल्ड फाइंड कर लो। अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करा तो इसको जीरो ले लो, राइट। और इधर हम क्या करेंगे, इफ आंसर इफ रूट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, देन हम क्या कह देंगे कि ये डोमिनेंट है। इस केस में आपका आंसर इंक्रीज हो जाएगा। एल्स आप क्या करोगे, रूट की वैल्यू को अपडेट कर दोगे, किससे, मैक्सिमम से। इट शुड वर्क नाउ, ओके इट वर्कड। सो कंप्लीट ट्री एक्चुअली वही होता है कि एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, बाकी सारे लेवल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो। ओके, so this is how we can solve this problem. We can solve this in the same function, we can make it recursive, right। और हर एक फंक्शन में हम हर एक लेवल पे हम क्या करेंगे, रूट को चेक करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ द रूट इज मैक्सिमम अमंग ऑल ऑफ द वैल्यूज इन इट्स सब ट्री, देन हम आंसर को इंक्रीज कर देंगे। अदरवाइज अगर ये वैल्यू लेस है अमंग ऑल वैल्यूज इन इट्स सब ट्री, तो हम इसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि वी विल नीड दिस वैल्यू लेटर इन इट्स पेरेंट, राइट। क्योंकि पेरेंट में भी हम चेक करेंगे ना लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू और राइट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू, तो इधर वो काम आ जाएगी अपडेट की हुई वैल्यू। एंड एट द एंड वी विल जस्ट रिटर्न द आंसर। आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट नोड्स इन द सब ट्री ऑफ रूट इंक्लूडिंग द रूट। Okay, so this is how we can solve this. Let's move to the next problem, that is the third problem. In this problem, that is a transform binary string using subsequence sort. So you are given a binary string, you are also given an array of strings strs where each string has the same length as s, consists of characters 0, 1 and question mark. Each question mark can be replaced by either 0 or 1. You may perform the following operation any number of times. Choose any subsequence of S. Sort the subsequence in non-decreasing order. Replace the chosen subsequence in S with sorted subsequence, keeping all other characters unchanged. Return a boolean array answer where answer of I is true if it is possible to replace all question mark in string I with either 0 or 1 and transform S into resulting string using the allowed operation above, otherwise return false. So प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल है, हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग S दे रखी है, राइट, और इसमें हमें कुछ एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी हैं और हमें एक बूलियन आंसर रिटर्न करनी है वेयर आंसर ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो आईएथ स्ट्रिंग इस लिस्ट में दे रखी है हमें,
इसको, इस स्ट्रिंग को अगर हम लें और इसके सारे क्वेश्चन मार्क को हम आइदर 0 और 1 से रिप्लेस कर दें, इसके बाद इज देयर ए पॉसिबल वे टू ट्रांसफॉर्म एस इनटू स्ट्रिंग ऑफ आई यूजिंग दिस ऑपरेशन। अगर ये पॉसिबल है तो हमारा आंसर ऑफ आई क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज आर आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स फॉर ith स्ट्रिंग। और ये ऑपरेशन क्या है, अगर इस ऑपरेशन को आप ढंग से देखो तो ये ऑपरेशन है बस इतना ही है कि आप कोई भी सबसीक्वेंस को पकड़ के उसको सॉर्ट कर सकते हो, है ना। दैट्स हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म एस, राइट। सो और इसको थोड़ा डीप डाइव करो तो इस ऑपरेशन का मतलब यही हुआ कि यार आप 1 को पीछे नहीं ला सकते, राइट। सो लेट्स से आई और जे हैं आपके दो इंडेक्स और आई इज लेस देन जे, तो आप और एस ऑफ आई लेट्स से 0 है और एस ऑफ जे 1 है, तो आप 1 को पहले नहीं ला सकते क्योंकि बस आप सॉर्ट कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। आप 0 को पहले लेके आ सकते हो, बस 1 को पहले नहीं लेके आ सकते। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रीफिक्स होगा ना, लेट्स से इसको ऐसे देखो, लेट्स से स्ट्रिंग एस आपकी ये है, आपकी एस स्ट्रिंग लेट्स से ओके, लेट्स से आपकी स्ट्रिंग ऐसा कुछ है, एस 0 S1 S2 S3, और अभी 0 और 1 ही है तो डायरेक्ट वही लिख देते हैं। लेट्स से आपकी स्ट्रिंग ऐसी कुछ है, राइट। और आपकी एस आई के लिए आप हम आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं। एस आई में किसको बोल रहा हूँ, कोई भी स्ट्रिंग, ith स्ट्रिंग फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके। सो लेट्स से हमने ith स्ट्रिंग ली और हम ये आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, और ये भी सेम लेंथ की दे रखी है एज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ये मान लेते हैं ऐसी कुछ है 1 क्वेश्चन मार्क 0 1 1 0 1, कुछ भी ऐसी। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि हम इस पर कुछ कुछ ऑपरेशन अप्लाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप क्वेश्चन मार्क और 0 को हमें रिप्लेस करना है, पहला टास्क हमारा ये है। तो आप कैसे रिप्लेस करोगे, वही ग्रीडी अप्रोच लगाते हैं इसमें। कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप इसमें से काउंट ऑफ 0, एस में काउंट ऑफ 0 और 1 फाइंड कर लो, काउंट ऑफ 0 एंड काउंट ऑफ 1, काउंट ऑफ 0 एंड काउंट ऑफ 1 फाइंड कर लो पहले आप, ठीक है, आपने फाइंड कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि इन क्वेश्चन मार्क को आइदर 0 और 1 से ही रिप्लेस कर सकते हो। आइदर 0 और 1 से रिप्लेस करने के बाद आप मुझे कहोगे कि भाई इसमें तो दोनों में काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 इक्वल होने चाहिए, ये तो कंडीशन मस्ट है। अगर काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 अगर इक्वल नहीं है एस और एस ओ आई में, तो हम एस को एस आई में ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 0 को 1 से तो चेंज तो कर ही नहीं सकते, बस स्वैप कर सकते हैं इधर से उधर, राइट। सो हम इन क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको एस आई को इटरेट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसमें इटरेट करते हैं। और हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क को, लेट्स से इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं कि सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि हमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना इधर 0 और 1 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस आई के लिए भी आप क्वेश्चन मार्क को हटा के काउंट ऑफ 0 ith स्ट्रिंग में काउंट ऑफ 1 ये फाइंड कर लो। काउंट आई ऑफ 0 काउंट आई ऑफ 1 क्या है, ith स्ट्रिंग में काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1। क्वेश्चन मार्क को एक बार हमने नेग्लेक्ट कर दिया, अब हमें क्वेश्चन मार्क को फिल करना है।
तो हम क्या करेंगे, ith स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट, si को लेफ्ट टू राइट इटरेट करते हैं, राइट। और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लेट्स से कोई इंडेक्स पर कोई क्वेश्चन मार्क है, राइट, वी एनकाउंटर्ड ए क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे कि इस हमें देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क को 0 से रिप्लेस करें या 1 से। तो आप मुझे ग्रेडीली बताओ, इस क्वेश्चन मार्क को आप 0 से रिप्लेस करोगे या 1 से। तो आप कह सकते हो मुझे कि भाई अगर मैं 0 से रिप्लेस कर सकता हूं इसको, तो मैं 0 से ही रिप्लेस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होगी, इस पहले तो ये बताओ मुझे, 0 से अगर करना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी। इसके लिए कंडीशन होगी कि भाई काउंट आई ऑफ 0 है, ये आपका लेस होना चाहिए काउंट ऑफ 0 से। अगर ये ऑलरेडी इक्वल या ऑलरेडी इक्वल हो गया तो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप ith स्ट्रिंग में काउंट ऑफ 0 को ज़्यादा तो नहीं कर सकते काउंट ऑफ 0 से, राइट, क्योंकि मैक्सिमम बस इक्वली एट द एंड आपको इक्वली करना है। तो अगर ये है तो आप कहोगे कि भाई मैं तो इसको 0 से रिप्लेस कर दूंगा। और 1 से रिप्लेस करने के लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि भाई काउंट ऑफ 1 है ith स्ट्रिंग में, ये लेस होना चाहिए काउंट ऑफ 1 इन स्ट्रिंग एस। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको 0 से रिप्लेस करना है 1 से। आप कहोगे कि अब भी कर सकते हैं डिसाइड, बहुत ईजी है। कैसे? कि मैं 0 से ही करूँगा सबसे पहले तो रिप्लेस। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप अगर 0 रखोगे तो ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि आप s को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, 0 को आप पीछे से उठा के पहले लेके आ सकते हो। कैसे? सॉर्ट करके। कोई भी आप जैसे इसको और इसको पकड़ो, आप स्वैप कर सकते हो, इस सब सीक्वेंस को पकड़ो और इसको सॉर्ट कर दो, इजी है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इस 1 को पकड़ा और इसको 0 को पकड़ा, इन दोनों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों को आपने लेट्स से यू सेलेक्टेड दीज टू करेक्टर्स, इसको सॉर्ट करोगे तब भी सेम ही रहेगा, 0 और 1 ही रहेगा। आप ये नहीं कर सकते कि इसको 1 को इधर ले आए और 0 को इधर ले आए, राइट, क्योंकि ऑपरेशन यही है कि आपको सॉर्ट करके रिप्लेस करना है, राइट। सो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि हम स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन मार्क है ना वहां 0 फिल करना चाहेंगे, जितना हो सकेगा उतना, और जितने बाकी बचेंगे क्वेश्चन मार्क उनमें हम 1 फिल कर देंगे, राइट, एज इजी एज दैट, एज इजी एज दैट। ओके, हाँ, तो हमारे क्वेश्चन मार्क फिल हो गए और एट द एंड हम चेक कर लेंगे अगर काउंट ऑफ 0 अगर दोनों स्ट्रिंग में इक्वल हैं एंड काउंट ऑफ 1 दोनों स्ट्रिंग में इक्वल हैं आफ्टर फिलिंग, तो हम कह दें कि अ, हम अगर हम ये फिल करने के बाद हम चेक करेंगे अगर काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 कोई भी एक अनइक्वल हुआ तो हम कह देंगे कि इट्स इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट एस टू एस आई, राइट, और हम आंसर में फॉल्स अपडेट कर देंगे। अदरवाइज लेट्स से इक्वल हैं, अब हमारा काम और बचता है। इसमें क्या काम बचता है कि अब हमें देखना भी है कि हम s को si में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अब हमें हमारा क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के बाद हमारा काम और बच गया। क्या बच गया कि हमें ये भी चेक करना है कि s को si में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। s को si में कैसे कन्वर्ट करोगे, यही ये वाले ऑपरेशन अप्लाई कर करके। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि हम अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना तो आप एक चीज़ देखो, आप 0 को पहले ला सकते हो, मतलब 0 और 1, अगर 1 पहले है 0 से तो हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, बट 1 को पहले नहीं ला सकते। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन गई कि आपका जो प्रीफिक्स है, लेट्स से कोई जे लेंथ का प्रीफिक्स है एस में और कोई जे लेंथ का प्रीफिक्स है एस आई में, राइट। अगर इस प्रीफिक्स में लेट्स से इसमें मुझे रिप्रेजेंट करना है काउंट, लेट्स से इसमें काउंट
ऑफ वन है, मान लो इसका काउंट ऑफ टू, काउंट ऑफ वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट ऑफ वन इन प्रीफिक्स ऑफ लेंथ जे इन एस, काउंट ऑफ टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट ऑफ वन इन एस आई प्रीफिक्स ऑफ लेंथ जे। अब इसमें अगर काउंट वन ग्रेटर देन काउंट टू है तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर ये लेस देन इक्वल्स टू है, इफ काउंट वन इज लेस देन इक्वल्स टू काउंट टू, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, राइट। ये हर एक प्रीफिक्स के लिए वैलिड होना चाहिए। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये काउंट वन क्या चेक कर रहे हैं। काउंट वन इज काउंट ऑफ वंस इन प्रीफिक्स ऑफ लेंथ j इन s। काउंट टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट ऑफ वंस इन प्रीफिक्स ऑफ लेंथ j इन si। समझ गए आप। सो अगर काउंट वन अगर ज़्यादा है काउंट टू से तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा इधर के इधर, हमें आगे के प्रीफिक्स चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों हो जाएगा ऐसा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि यार अगर प्रीफिक्स में काउंट वन ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कुछ वन को हमें निकाल के बाहर डालना पड़ेगा, मतलब आगे डालना पड़ेगा। और हमने पहले देखा ही था कि वन को आप पीछे मूव नहीं करवा सकते, नहीं वन को करवा सकते हो। तो मैंने एक गलती कर दी इधर, मैंने गलती कर दी इधर, नहीं, हमें ये चीज़ चेक करनी है, उल्टा चेक करना है हमें। वन को पीछे मूव करवा सकते हो, वन को आगे मूव नहीं करवा सकते, राइट। हमने इधर क्या देखा, वन को आगे मूव नहीं करवा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंट ऑफ वन है वो, इफ काउंट ऑफ वन इज लेस देन काउंट ऑफ टू देन हमारा फॉल्स होगा, और ग्रेटर देन है तो ट्रू होगा। हाँ, सो सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। इसमें हमने क्या देखा कि अगर काउंट, हम वन को पीछे मूव नहीं करवा सकते, राइट। वन को हम पीछे मूव नहीं करवा सकते, वन को हम इधर ही मूव करवा सकते हैं, बैक ऑफ द स्ट्रिंग ही मूव करवा सकते हैं। लेट्स से 0 1 इधर है, ये 0 है आपका, ये 1 है, तो आप वन को इधर नहीं लेके आ सकते, राइट। इस केस में लेट्स से 1 और 0 है, तो 1 को आप इधर लेके आ सकते हो, राइट। 0 को इधर लेके आ सकते हो, क्यों, क्योंकि हम वो वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे जिसमें से इस सब सीक्वेंस को पिक करेंगे और सॉर्ट कर देंगे, राइट। ओके, sorting only allows to take 0 closer to the starting position, right. Sorting doesn't allow any one to the closer to the starting position. ओके, सो इधर हमने देख लिया कि अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है कहीं भी किसी भी प्रीफिक्स ऑफ लेंथ जे पर, तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। Okay, so first of all, let's say n is the length of this string. Okay, and इधर हम क्या करेंगे, हम काउंट ऑफ 0 एंड काउंट ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं स्ट्रिंग एस में। काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 क्या है, यही हम सबसे पहले चेक करना चाह रहे हैं कि ये दोनों जो काउंट ऑफ 0 है और काउंट ऑफ 1 है दोनों में इक्वल होना चाहिए। और सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, राइट। सो इटरेट ओवर दिस
एस इफ यू इक्वल्स टू 0 काउंट 0 प्लस प्लस एल्स काउंट 1 प्लस प्लस। अब आप इटरेट करते हो आपकी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स पर। ओके, इसमें भी आप वही करते हो, काउंट आई ऑफ 0 फाइंड कर लो, काउंट आई ऑफ 1 फाइंड कर लो, और आप इस पर इटरेट कर लो इस स्ट्रिंग पर। इफ u इक्वल्स टू 1, इफ u इक्वल्स टू 0 काउंट ऑफ i 0 प्लस प्लस, एल्स इफ u इक्वल्स टू 1 i ऑफ 1 प्लस प्लस। और क्वेश्चन मार्क को एक बार के लिए इग्नोर करते हैं। अब हम आते हैं, इसको फिल करते हैं, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हम फिल करते हैं, इसको डायरेक्टली इटरेट कर लेते हैं। ओके, सो अगर इफ u इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। हम क्या चेक करेंगे कि इफ काउंट ऑफ i ऑफ 0 इज लेस देन काउंट ऑफ 0, तो हम डायरेक्टली इसको अपडेट कर देंगे। u को हम 0 से अपडेट कर देंगे और काउंट i ऑफ 0 ऑल्सो इंक्रीज कर देंगे। एल्स केस में हम इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे और काउंट ऑफ 1 इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब हमारा टास्क हो गया, हमने क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं, इफ काउंट ऑफ i ऑफ 0 इज ग्रेटर देन काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ i ऑफ 1 इज ग्रेटर देन काउंट ऑफ 1, तो इसके लिए हमारा इम्पॉसिबल केस हो जाएगा s को si में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम जस्ट आंसर को, इस केस में हमारा आंसर ऑफ i हो जाएगा फॉल्स, एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू। एक इधर आंसर अरे भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारा काम बच गया कि ये काउंट ऑफ i ऑफ 0 इक्वल्स टू काउंट ऑफ 0 एंड काउंट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ 1, दोनों में इक्वल है s और si में, मतलब 0 और 1 का काउंट दोनों में इक्वल है s और si में। अब हमारा टास्क बच गया ये वाली कंडीशन सोल्व करने का, कि इज देयर ए पॉसिबल वे टू कन्वर्ट s टू si, टू कन्वर्ट s टू si। इस केस में हम क्या चेक करेंगे कि इस केस में हम चेक करेंगे कि कोई भी प्रीफिक्स ऑफ लेंथ j है, उसमें हम चेक करेंगे अगर काउंट ऑफ 1 इन s अगर कम है, लेट्स से काउंट ऑफ 1 इन s इज लेस देन काउंट ऑफ 1 इन si, then we can say that our answer is false. Why we can say this? अगर 1 अगर 1 का काउंट कम है तो हम कह सकते हैं कि 1 को तो पीछे नहीं ला सकते, मतलब 1 को तो स्टार्टिंग पोजीशन के नियर नहीं ला सकते, राइट? सो लेट्स ऑल्सो वेरीफाई दिस कंडीशन। अब हम क्या चेक करेंगे, लेट्स से काउंट ऑफ 1, काउंट 1 काउंट 2 वही चीज़ है, हम डिफाइन कर रहे हैं इधर, इधर जो हमने डिफाइन करी थी। काउंट 1 क्या है? काउंट ऑफ 1 इन प्रीफिक्स ऑफ लेंथ j इन s। ओके, j पर इटरेट करते हैं। इफ s ऑफ j इक्वल्स टू 1, काउंट 1 को अब बढ़ा दो। इफ str ऑफ j इक्वल्स टू 1, तो आप काउंट 2 को बढ़ा दो। और इधर आप चेक कर लो
कि काउंट 1 अगर कम हुआ काउंट 2 से, मतलब हमारा नॉट पॉसिबल। एक पॉसिबल इधर बूलियन फ्लैग भी बना लो। इनिशियली वी विल अज्यूम दैट इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एस टू एस आई, और इधर आप ब्रेक कर दो इस लूप को। एट द एंड आंसर में ये पॉसिबिलिटी ऐड कर दो कि पॉसिबल है या नहीं। एट द एंड जस्ट रिटर्न आवर आंसर। अरे first one answer is true, true, false. For second sample, true, false, true. For third sample, answer is true. Okay, so let's submit it. Great. So let's move to the fourth problem. Third we have just solved. Okay, so this is our fourth problem. Minimum number of strings groups through transformations. So in this problem, you are given an array of strings words. Define a transformation on a string as follows. Let E be the subsequence of characters at even indices of S. Let O be the subsequence of characters at odd indices of S. Okay. Now independently cyclic shift E and O by any number of positions to the right, possibly 0. Right. Reconstruct the string by placing the shifted E characters back into the even places and shifted O characters back into the odd indices. You say that two strings are equivalent if one can be transformed into other by applying a single transformation. Partition words into minimum number of groups such that every string belongs to exactly one group. Every pair of strings in the same group are equivalent. Return the integer denoting minimum number of groups. Okay. So problem statement हमें समझ में आ गया, right? इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमें एक अरे ऑफ वर्ड्स दे रखा है, राइट? और इसको हमें मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और एक ग्रुप में आप कितनी भी स्ट्रिंग रख सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि उस ग्रुप में जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे ना वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ऐसे आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं। अब भाई एक दो स्ट्रिंग हैं वो इक्विवेलेंट, उनको आप इक्विवेलेंट कब बोलोगे? उसकी कंडीशन इसने ये दे रखी है कि दो स्ट्रिंग को आप इक्विवेलेंट तभी बोलोगे जब कोई एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट की जा सकती हो यूजिंग दिस ऑपरेशन या दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है कि आप इवन इंडिसेस पर सारे करेक्टर्स हैं उनको पकड़ो और उनको आप साइक्लिक शिफ्ट कर सकते हो कितनी भी टाइम्स। ऐसे ही आप ओड करेक्टर्स, ओड इंडिसेस पर जितने भी करेक्टर्स हैं उनको पकड़ो और उनको आप साइक्लिक शिफ्ट कर सकते हो राइट साइड कितने भी टाइम्स, राइट? और इनको साइक्लिक शिफ्ट करने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगी अगर वो सेकेंड स्ट्रिंग के इक्वल है तो आप इन दोनों को इक्विवेलेंट बोल दोगे। तो इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने हैं such that in a group we have equivalent strings. Okay, so let's see how we can solve this. So अभी एक sample test case लेते हैं, right? So let's say we pick this sample test case. हमने ये सैम्पल टेस्ट केस लिया। अभी इसके लिए हम आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्रुप्स वी कैन फॉर्म। सो इधर आप देखो कि ए बी सी को हमने किसी एक ग्रुप में रख दिया, राइट? लेट्स सी ये ग्रुप 1 है, ए बी सी को रख दिया। हम इटरेट करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग है अगर कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप में फिट हो सकती है तो हम उसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज ये कोई भी ग्रुप में फिट नहीं हो सकती तो हमने एक नया ग्रुप बना देंगे। तो लेट्स से अभी हम सेकेंड स्ट्रिंग पे गए। सेकेंड स्ट्रिंग हमारी क्या है? सी ए बी।
तो आप देखो कि यार हमारे पास अभी करंटली एक ग्रुप है, आप CAB को इस ग्रुप में ऐड कर सकते हो क्या? इस ग्रुप में ऐड करने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है कि भाई हमारा जो CAB है ये आपका ABC के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप देखो कि इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ABC में। ओड इंडिसेस कौन से हैं आपके? ओड इंडिसेस हैं आपके ये और ये। तो आप देख सकते हो कि यार आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो, आप A को C से एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि इसको तो रोटेशन में जो इवन इंडिसेस पर हैं एलिमेंट, जितने भी इवन इंडिसेस पर जितने भी करेक्टर्स हैं वो बस इवन इंडिसेस पर ही जा सकते हैं, ओड इंडिसेस पर नहीं आ सकते, राइट? सो इधर हम देख सकते हैं कि ए फर्स्ट पोजीशन पर तो आ ही नहीं पाएगा। तो हम कह देंगे कि यार ये तो इक्विवेलेंट नहीं है ABC के, तो हमें नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक दूसरा ग्रुप बना देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं इसको। अब हम आते हैं तीसरी स्ट्रिंग पर। अब हम आते हैं तीसरी स्ट्रिंग क्या हमारी BAC। अब BAC कोई भी इन एक के इक्विवेलेंट है क्या? इसके तो इक्विवेलेंट नहीं होगी क्योंकि ए को आप फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ला सकते। अब देखते हैं कि इसके इक्विवेलेंट है या नहीं। ए तो चलो अपनी पोजीशन पर है, इसको आप सी को आप इधर ला सकते हो ना। कैसे? कि ये जो ओड इंडिसेस हैं फर्स्ट और थर्ड, आप इसको एक साइक्लिक शिफ्ट कर दो राइट साइड, तो आपका क्या हो जाएगा? इसको अगर साइक्लिक शिफ्ट कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा CAB, राइट? एंड CAB इज इक्वल टू CAB। तो आपकी ये दोनों BAC और ये CAB ये इक्वलेंट हो गए, तो आप इसको इस ग्रुप में ऐड कर दोगे इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू ग्रुप। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पर। आपकी नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है? ACB। ACB ACB किसी से मैच हो सकती है इस ग्रुप? नहीं हो पाएगी क्योंकि C आप फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ला सकते, है ना? और इससे भी मैच नहीं हो सकती क्योंकि आप B सेकंड पोजीशन पे नहीं ला सकते। तो इसके लिए आपको नया ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, ACB। अभी ये सैम्पल टेस्ट के समझ रहे हैं, एक अच्छी एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे इसके लिए। हम लार्जर वैल्यूज़ के लिए कैसे करेंगे इसको वो भी समझेंगे। तो पहले सैम्पल टेस्ट के इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो हमारा ACB हमने कर लिया प्रोसेस। अब हम आते हैं BCA पर। BCA किसके इक्विवेलेंट है? इसके हो सकता है। कैसे? C को आप सेम रहने दो क्योंकि वी डोंट नीड टू चेंज इट्स पोजीशन। आप जो ओड इंडिसेस है ना, इस पर एक साइक्लिक शिफ्ट राइट साइड अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ACB। तो आपका ये इधर आ जाएगा। अब आपका आता है नेक्स्ट स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है? CBA। CBA कहीं फिट हो सकता है क्या? CBA इधर फिट हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप में। कैसे? B को इधर रहने दो, ओड इंडिसेस पर एक साइक्लिक शिफ्ट लगा दो आप, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ABC, राइट? सो CBA इधर आ गया। तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन सकते हैं इधर? आपके मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने? 3, राइट? 1 2 3। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, यही होना चाहिए आंसर। हाँ, 3 है। ग्रेट। अब हम सोल्व करते हैं कि यार इसको जनरल अरे, अब क्योंकि कंस्टेंट्स काफ़ी हाई है, 10⁵, राइट? एंड वर्ड्स ऑफ हाइट और लेंथ इज ऑल्सो 5 × 10⁵। अब क्योंकि कंस्टेंट इतने हाई हैं तो हमें इसको लीनियर में ही सोल्व करना पड़ेगा, राइट? सो एक पार्टिकुलर एल्गोरिदम पर जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे ना, कि लेट्स से हम एक सेट बनाते हैं, राइट? एक सेट बनाते हैं S, जो कि कंटेन करेगा ओनली यूनिक स्ट्रिंग फ्रॉम ईच ग्रुप। इससे मेरा क्या मतलब है कि यार हर एक ग्रुप में है ना, आप एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पकड़ लो, राइट? सो फॉर एग्जांपल इसमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी आपकी?
ए बी सी, तो आप सी ए बी को स्टोर करने के बजाय बस ए बी सी को स्टोर कर लो इस सेट में, ए बी सी को डाल दो। तो जैसे ही आप सी ए बी पर आओगे तो सी ए बी का लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बना सकते हो आप, वो देखो आप। तो सी ए बी का, सी बी ए का लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बना सकते हो रोटेट कर करके। बी को तो आप कैसे ही रोटेट कर लो, ये तो इधर ही रहेगा क्योंकि इवन प्लेस पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसको रोटेट कर सकते हो। तो ए बी सी बना दिया आपने, और इससे छोटा आप नहीं बना सकते लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो आपका ए बी सी बन गया। तो आप सेट में ए बी सी ऐड कर दो। अब क्योंकि दोबारा ऐड कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेट है, सेट यूनिक एलिमेंट ही स्टोर करता है बस, है ना, डुप्लीकेट को जस्ट इग्नोर कर देता है। तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसी एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं सच दैट हम इस वर्ड्स अरे पर इटरेट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या करेंगे, वर्ड्स अरे पर इटरेट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कोई भी लेट्स से स्ट्रिंग आती है एस आई, मतलब वर्ड्स अरे में कोई भी स्ट्रिंग एस आई आती है, तो हम क्या करेंगे, या फिर ज़्यादा कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ इससे, वर्ड्स ऑफ आई बोल देते हैं या फिर वर्ड बोल देते हैं, वर्ड ऑफ आई। कोई भी आयत वर्ड आता है ना, तो आप इसके लिए क्या फाइंड करोगे, आप इसके लिए फाइंड करोगे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, राइट। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करोगे, ये नहीं कि सारे डायरेक्टली सॉर्ट कर दोगे, सॉर्ट नहीं करना आपको। आपको ये वाले ऑपरेशन अप्लाई कर करके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये वाले ऑपरेशन अप्लाई कर करके आप लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बना सकते हो। सो लेट्स से वो आपका है एल एस ऑफ आई, राइट, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप इवन इंडिसेस के कैरेक्टर्स को रोटेट कर सकते हो, ओड इंडिसेस के एलिमेंट्स को रोटेट कर सकते हो। सो आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बना ली। कैसे बनाई वो हम बाद में देखेंगे। एक बार मान लो हमने बना ली, कोई एल्गोरिदम है हमारे पास, राइट, सीक्रेट एल्गोरिदम है हमारे पास, वो लीनियर में हमें आंसर दे देगी। एक बार मान लो, तो हमारे पास एल एस ऑफ आई आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सेट में ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, राइट। सो ये हम करते जाएंगे और हम लेफ्ट टू राइट सारे वर्ड्स को प्रोसेस कर लेंगे। एट द एंड हमारा आंसर क्या होगा, साइज ऑफ एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप सोच के देखो कि जितने भी यूनिक ग्रुप होंगे, कोई भी ग्रुप होगा ना, उसके सभी स्ट्रिंग्स का जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा वो सेम होगा, राइट। सो हमारा आंसर सिंपल हो गया। अब हमें बस नंबर ऑफ यूनिक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करनी है सारे वर्ड्स में, वो कि हमारा सेट दे देगा, क्योंकि सेट इग्नोर कर देता है डुप्लीकेट्स को, सारे डिस्टिंक्ट को बस कैच करके रखेगा। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल हमारा आंसर क्या बन गया, साइज ऑफ सेट एस। ओके, हमने एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सोल्व कर लिया, फ्यूचर पार्ट। अब मेन पार्ट पे आते हैं कि भाई ये कैसे फाइंड करोगे आप लेट्स फॉर एनी स्ट्रिंग। लेट्स से अब हमारा काम बच गया कि लेट्स से यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस। अब आप सेट से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको नए अलग से हम कंसिडर कर रहे हैं, ये नई प्रॉब्लम मान लो इसको। स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आपको एस दे रखी है, ओके, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। कोई भी स्ट्रिंग आपको दे रखी है एस, मुझे बताओ कि आप ये वाले ऑपरेशन अप्लाई कर करके आप लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कैसे फाइंड कर सकते हो इस स्ट्रिंग के लिए, एस के लिए, है ना। इसको फाइंड करने के लिए अब ब्रूट फोर्स से तो कर ही सकते हो ना यार। लेट्स से आपके पास कंस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली वही करोगे, सारे इवन इंडिसेस पर जितने भी करेक्टर्स हैं, लेट्स से ओड इंडिसेस पर जितने भी करेक्टर्स हैं 1 3 5 7, इस पर जितने भी करेक्टर्स हैं आप उनको पकड़ोगे
और उनको सॉर्ट कर दोगे, नहीं सॉर्ट नहीं करोगे, उनको आप रोटेट कर दोगे, राइट। और इवन इंडिसेस पर जितने भी हैं आपके एलिमेंट्स उनको आप रोटेट कर दोगे, और आप रोटेट कर करके जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो बना लोगे। अब मुझे बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बन सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं आपकी ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन ही बन सकते हैं ना, क्योंकि लेट्स से आप इसको अगर रोटेट करते हो, लेट्स से कोई भी स्ट्रिंग को, नहीं इसमें लेट्स से ये आपकी हो गई एस ओड, ये हो गया आपका एस इवन, राइट। सो आपकी एस ओड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बन सकती हैं? ऑर्डर ऑफ एन बाई टू, ऑर्डर ऑफ एन बाई टू ही बन सकती हैं, राइट। और आपकी ये भी सिमिलर वही हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन बाई टू इतनी बन सकती है मैक्सिमम डिफरेंट स्ट्रिंग, क्योंकि एक रोटेशन सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशंस कितने अप्लाई कर सकते हो आप? एन बाई टू। सो ये हो गया। और आपकी टोटल कितनी बन सकती हैं इधर? ऑर्डर ऑफ एन बाई टू इंटू एन बाई टू, तो ये क्या हो गया आपका? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बिग ओ नोटेशन में ये आपका टू इग्नोर कर देते हैं हम, तो एक्चुअली ये ऑर्डर ऑफ एन ही है, राइट। बिग ओ नोटेशन की अगर आप बात करते हो तो, है ना, ये भी ऑर्डर ऑफ एन ही है, क्योंकि कॉन्स्टेंट को उधर हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो हमारा टोटल कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, राइट। बट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो हम सॉल्यूशन नहीं जा सकते इधर, क्योंकि हर एक पॉसिबल केस तो हम नहीं कर सकते इधर ऑब्जर्व, क्योंकि वो तो एन स्क्वायर तो अलाउड ही नहीं है। तो हमें लीनियर एल्गोरिदम चाहिए, जो कि हमें हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दे दे कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग एस के लिए। उसके लिए आती है हमारी एक पार्टिकुलर एल्गोरिदम, जो कि है बूथ्स एल्गोरिदम। सो ये क्या फाइंड करती है? ये फाइंड करती है लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग रोटेशन। मतलब आप स्ट्रिंग को रोटेट करते जाओ, आप स्ट्रिंग को रोटेट कर करके जो लेक्सिकोग्राफिकली लिस्ट स्ट्रिंग जो फाइंड करोगे, वो आप इस एल्गोरिदम से फाइंड कर सकते हो, बूथ्स एल्गोरिदम से, राइट। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। बूथ्स एल्गोरिदम एक्चुअली काम कैसे करती है? बूथ्स एल्गोरिदम ऐसे काम करती है कि जैसे आप इनिशियली स्टार्ट करोगे, आप 3 पॉइंटर लेके चलते हो इसमें, राइट। सो आपने एक i इक्वस टू 0 पॉइंटर ले लिया, j इक्वस टू 1 ले लिया, और k इक्वस टू 0 पॉइंटर ले लिया। आप किसी भी टाइम पे, है ना, अब 2 पॉइंटर लेके चलते हो, तो इस एल्गोरिदम का कोर कंसेप्ट क्या है कि ये एल्गोरिदम एक्चुअली स्मार्टली कुछ कुछ रोटेशंस को स्किप कर देती है, राइट। सो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे थे? ब्रूट फोर्स में हम ये कर रहे थे कि हर एक स्ट्रिंग को हम किसी दूसरी स्ट्रिंग से मैच करके देख रहे थे कि यार ब्रूट फोर्स में हम ये वाली स्ट्रिंग बेटर है या ये वाली स्ट्रिंग बेटर है, राइट। बट इधर हम क्या करेंगे? हर एक पॉसिबल पे नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ ही स्ट्रिंग्स के प्रीफिक्स को चेक करेंगे, है ना। और कोई भी अगर प्रीफिक्स अगर बड़ा हुआ किसी दूसरे से, तो हम उसको स्मार्टली इग्नोर कर देंगे, राइट। सो लेट्स से हाउ डज दिस एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क्स। तो इनिशियली हम 3 पॉइंटर लेके चलते हैं, राइट। और हम इन पॉइंटर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? सो लेट्स से हम एक लूप चलाएंगे, लेट्स से फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव आई जे एंड के। सो हम चेक करेंगे कि जो आई एस ऑफ आई प्लस के है, इफ इट इज इक्वल टू एस ऑफ जे प्लस के, राइट। मतलब कि आप अभी दो स्ट्रिंग्स को कंसिडर कर रहे हो, दो स्ट्रिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कि आई, एक तो आई पे स्टार्ट हो रही है, एक जे पे स्टार्ट हो रही है, राइट। और इसकी जो केथ करेक्टर है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप अभी मान लो कि आई से आई प्लस के माइनस वन तक और जे से जे प्लस के माइनस वन तक, ये वाला जो प्रीफिक्स है बोथ ऑफ दिस सब स्ट्रिंग्स वो इक्वल है, राइट। सो अगर इन दोनों के करेक्टर्स इक्वल हैं, तो इधर हम क्या करते हैं? इफ दे आर इक्वल, देन व्हाट डू वी डू इज वी विल इंक्रीज आवर वैल्यू ऑफ के,
हम इसका नेक्स्ट करेक्टर कंपेयर करेंगे, मतलब k+1 लेंथ के प्रीफिक्स कंपेयर करेंगे अब हम। अदरवाइज इफ इट इज नॉट इक्वल, इफ केस है ये, एल्स, एल्स केस क्या आता है कि इफ दीज आर नॉट इक्वल, इफ दिस इज नॉट इक्वल वो केस कंसिडर कर लो। तो उस केस में क्या होगा ना, अगर मान लो आपका केथ करेक्टर अगर इक्वल नहीं है इन दोनों स्ट्रिंग्स का, फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग एट आई, सेकेंड वन इज स्टार्टिंग एट जे, अगर केथ करेक्टर इक्वल नहीं है तो आप एक चीज़ बताओ कि कौन सी स्ट्रिंग बेटर है इन दोनों में से। ऑफ कोर्स वो स्ट्रिंग बेटर है जिसका, लेट्स से, अगर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसमें, आप मुझे बताओगे कि भाई वो वाली स्ट्रिंग बेटर है जिसका करेक्टर केथ करेक्टर स्मॉलर है। तो अगर आईएथ मतलब जो स्ट्रिंग आई पे स्टार्ट हो रही है उसका केथ करेक्टर अगर स्मॉलर है जो जे पे स्टार्ट हो रही है उससे, तो ऑफ कोर्स जे लूज इज, राइट, जे लूज कर जाएगी। और अगर जे लूज कर गई, मतलब हम आई को रखने वाले हैं सिर्फ, तो जे को आप इंक्रीज करा दो, जे प्लस इक्वल्स टू k+1, आप जे पॉइंटर को k+1 आगे मूव करवा दो, राइट। अदरवाइज लेट्स से इफ दिस इज ग्रेटर, राइट, एस ऑफ आई प्लस के एस ऑफ जे प्लस के से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इस केस में आपका आई लूज कर गई क्योंकि आपका जे बेटर है ना, स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो आप आई पॉइंटर को k+1 टाइम्स आगे मूव करवा दो, राइट। और ये लूप हमारा चलता रहेगा जब तक कि आइदर आई और जे आपका आउट ऑफ बाउंड चला जाए, मतलब आई या तो आई आगे चला जाए एन से, या जे एन लेंथ से एक्सीड कर जाए, तो उधर हम इस लूप को रोक देंगे। और एट द एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम ऑफ, हमारा आंसर हो जाएगा द स्ट्रिंग हुज रोटेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम ऑफ आई कोमा जे, राइट। आई और जे कोई भी हो सकता था बट मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पॉइंटर है वो पार्टिकुलर लेंथ लेट से एन से एक्सीड कर गया हो, राइट। तो हमें मिनिमम ऑफ आई ऑफ जे वाला होगा, वहाँ से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग जो होगी उसका रोटेशन, उसका रोटेशन लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा। ओके, so this was the algorithm, let's try to implement it। हाँ, तो इधर पहले एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी अभी नई नई एल्गोरिदम हमने सीखी है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, ओके। और लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल, इसको ये अच्छा सा ही नाम रख देते हैं, लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग रोटेशन, लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग रोटेशन। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस को इनपुट ले गए, अब इधर कमेंट भी लिख देते हैं कि भाई ये फंक्शन है क्या। लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग रोटेशन गिव्स यू द लेक्सिको, को पेस्ट कर देते हैं, तो आपके समझने के लिए ये है। द लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग रोटेशन और लेक्सिकोग्राफिकली लीस्ट स्ट्रिंग रोटेशन इज द प्रॉब्लम lowest lexicographically order of such rotation। returns the lexicographically
returns the lowest lexicographical order of all such rotations. Okay, so let's implement it. Let's implement the algorithm. So इधर हम 3 पॉइंटर लेते हैं, i को 0 से स्टार्ट करते हैं, j को 1 से, k को इनिशियली 0 से, क्योंकि 0th करेक्टर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी, एस डॉट साइज। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि कोई भी n को एक्सीड नहीं कर रहा, राइट। सारे पॉइंटर n से कम ही होने चाहिए। कोई भी पॉइंटर अगर n से एक्सीड कर जाता है, n को एक्सीड कर जाएगा, तो उधर ही हम अपने एल्गोरिदम को रोक देंगे, राइट। ओके, सो इधर हम चेक करते हैं कि जो जो kth करेक्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम i, अगर ये इक्वल है kth करेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम j, अगर ये इक्वल है तो हम k को सिंपली इंक्रीज कर देंगे। वी विल जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ k बाई 1, क्योंकि हम अब नेक्स्ट करेक्टर कंपेयर करेंगे। अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कोई एक स्ट्रिंग को एलिमिनेट करने वाले हैं। किसको एलिमिनेट करेंगे, तो पहले ये चेक कर लो कि कौन से का करेक्टर kth करेक्टर जो है वो स्मॉलर है। सो लेट्स से ith का kth करेक्टर स्मॉलर है, तो भाई इस केस में हम j को एलिमिनेट कर देंगे। j पॉइंटर को आगे बढ़ा दो k+1 लेंथ से, और k को आप 0 से सेट कर दो। एल्स केस क्या बच गया कि आपका ith का kth जो ith स्ट्रिंग है उसका kth करेक्टर बड़ा है, तो इस केस में हम i को एलिमिनेट कर देंगे और k को 0 से इनिशलाइज कर देंगे। अब एक केस और आता है इधर कि ऐसा भी हो सकता है ना कि i और j जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एलिमिनेट करने के बाद i और j इक्वल हो जाएं, तो आप इस केस में j को 1 से बढ़ा दो, एक पॉइंटर से आगे बढ़ा दो, क्योंकि सेम दो स्ट्रिंग हैं, दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रही है, उनको कंपेयर करने का तो कोई मतलब है नहीं, राइट। एट द एंड हमारा क्या हो जाएगा, हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, हमारा इंडेक्स बताओ मुझे जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मुझे देगा आफ्टर ए रोटेशन। उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम आई को मजे से, और वो स्ट्रिंग क्या होगी, वो स्ट्रिंग यही होगी, द सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम आई अप टू एंड प्लस इसका प्रीफिक्स। जीरो ऑफ आई लेंथ। ओके, सो हमने फाइंड कर लिया लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग रोटेशन, लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग आफ्टर रोटेशन भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम हमारी जो एल्गोरिदम है, मेन एल्गोरिदम, मेन सॉल्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हम एक सेट ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट, इसमें सारे स्ट्रिंग्स के लिए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वो ऐड कर देंगे। एस डॉट इंसर्ट। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि सबसे पहले दो स्ट्रिंग फाइंड करो, ई और ओ। स्ट्रिंग ई क्या है, स्ट्रिंग ई क्या है, जो इवन करेक्टर्स पर इवन पोजीशन पर जाता सारे करेक्टर्स हैं। ओ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओड पोजीशंस पर सारे करेक्टर्स हैं। उन दोनों को फाइंड कर लो पहले। इफ ये आपका इवन है तो इसमें ऐड कर दो आप ये करेक्टर यू ऑफ आई। अदरवाइज आप यू ऑफ आई को ओड में ऐड कर दो।
ओके हाँ, तो वंस यू फाउंड आउट दिस टू स्ट्रिंग्स ई एंड ओ, अब आप क्या करोगे, अब आप इंसर्ट कर दोगे, क्या इंसर्ट करोगे, इंसर्ट कर दोगे आप LMSR ऑफ ई प्लस एक सेपरेशन के लिए, कॉन्केटेनेशन के लिए ये डाल दो, ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ है। LMSR ऑफ ओ, एट द एंड हमारा आंसर क्या होगा, साइज ऑफ दिस सेट, एस डॉट साइज हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आप ये चीज़ ना समझो कि भाई ये क्या कर दिया हमने, मतलब ये वाली चीज़ क्यों ऐड करी है। आपको ये तो पता होगा कि LMSR ऑफ ई क्या है, LMSR ऑफ ई है द लोएस्ट लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर ऑफ ऑल सच रोटेशंस, राइट। सच कौन से रोटेशंस, भाई राइट साइड रोटेट करते जाओ स्ट्रिंग को। तो लोएस्ट लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर ऑफ ऑल रोटेशंस ई पर अप्लाई करने के बाद हमें ये स्ट्रिंग मिली, ओ पर अप्लाई करने के बाद हमें ये स्ट्रिंग मिली, राइट। और आप इसको कॉन्कैटिनेट करके एस में डाल दो सच दैट इसमें हम बस यूनिक कंसिडर कर पाए, हम बस डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कंसिडर कर पाए। ये वाला जो कंप्लीट स्ट्रिंग है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्टिकुलर ग्रुप को, राइट। ये हर एक ग्रुप के लिए, एक ग्रुप में जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे ना, उसके लिए ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, वो सेम होगी। सेम क्यों होगी, वो हमने पहले समझी थी, इधर क्यों होगी, राइट। ये वाली वैल्यू सेम क्यों होगी वो हमने समझी थी, इधर ये ग्रुप्स में ऐड करे थे तब। ओके सो अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देते हैं कि ये वैल्यू क्या है ना, एक्चुअली आपको रोटेट करने के बाद मिनिमम जो लोएस्ट लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर है वो आपको रिटर्न करता है, राइट, ऑफ ऑल इवन करेक्टर्स, ऑफ ऑल करेक्टर्स विच आर प्रेजेंट एट द इवन इंडिसेस। ये आपको ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि द लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग आफ्टर फॉर ऑल rotations, right, for all characters which are present at odd indices, right। और आप इसको कॉन्केटिनेट करके डाल दो, आप कॉन्केटिनेट करने से पहले एक हाइफन भी डाल दो बीच में, ताकि आपको एक सेपरेशन बना रहे कि यार ये इससे हाइफन से पहले वाले सारे इवन इंडिसेस वाले करेक्टर्स हैं, हाइफन के बाद वाले सारे ओड इंडिसेस वाले करेक्टर्स हैं। तो ये कंप्लीट चीज़ आपकी रिप्रेजेंट करिए ग्रुप की आइडेंटिटी को, कह सकते हो आप इसको, राइट। सो आपने फिर इसको ग्रुप की आइडेंटिटी को सेट में इंसर्ट कर दिया, और एट द एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप आइडेंटिटीज, वो आपका सेट अपने आप हैंडल कर ले रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस डॉट साइज, दैट इज साइज ऑफ दिस सेट। ओके सो लेट्स सबमिट इट। क्या एरर आ रही, अनऑर्डर्ड, फर्स्ट का 1, सेकंड का 3, थर्ड का 5, let's submit it. Great. So this is how we can solve this problem. I hope you got the solutions for this particular contest. If you have any doubts, you can ask me in the comments. So let's end this video now. Have a nice day. Thank you.